Jai Hind all. I welcome my all students and viewer to my online classes. This is not a general class of study but a general information about the pandemic disease COVID-19 is being given to you or provided to you in very simple and informative language. As we all know that Borgasm has entered into our life, means a peak of disinterest about anything. We are not able to continue this kind of environment and this kind of isolating isolating nature in our societies for a long time. But nothing is in our hand except our own health, habit, and ideas, good positive ideas, and faith on science, technology, and the utmost Almighty God. So, in this aspect, in academic career also, and in academic chapters also, our Ministry of Human Resource Development MHRD and Ministry of Family and Welfare Department also has tried to create an relationship between this pandemic disease and your academic chapter. So, and AAC alternative academic curriculum has been given by the MHRD, in which class 9th has a chapter, Why Do We Fall Ill? And in that chapter I have searched that this chapter has been totally introduced in a new form by giving you details about this corona virus and COVID-19 disease. So I have also tried in a best and simple way to make you understand what this disease is and to what level we must be afraid of this disease and what preventing causes and what preventive measures we can take easily in our day-to-day life to make ourselves healthy and to get rid of this disease who is entering in our day-to-day life, and we are suffering a lot mentally and socially. Even it is not a very vital disease, बहुत खतरनाक डिजीज़ ना होने के बावजूद भी हम इससे मेंटली एंड सोशली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. सो MHRD, NCERT, CBSE, every department and every academic institution is nowadays relating the academic topics with the present situation also. So we must know about the basic ideas, the basic reasons what we are doing and why we are doing to prevent from this disease. Now, this disease is called as COVID-19. I will tell you why. And this disease is caused by SARS-CoV-2. The name of the virus is SARS-CoV-2. Okay. First of all, we must know that virus is non-living particles outside the body, and it is just like dust particle and any particle, microscopic but smaller than bacteria, and it is non-living outside the body. But the dangerous point is that it becomes living as soon as it enters the living organism body. वायरसेस जो होते हैं वो बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह होते हैं और माइक्रोस्कोपिक है, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं. इनमें सबसे भयंकर बात, खतरनाक बात, डराने वाली बात यह होती है कि ये लिविंग जैसे ही हमारे लिविंग बॉडी में इंटर करते हैं ये लिविंग हो जाते हैं. और कैसे लिविंग होते हैं, इनकी बहुत ही डेंजरस मैकेनरी है लिविंग होने का. दे हाईजैक आवर लिविंग नेचर एंड आवर DNA and
they insist our DNA to create their particles instead of creating our enzymes and our chemicals. वो हमारे जीनोम पर अटैक करते हैं, डीएनए से अटैच होते हैं और फिर हमारे डीएनए को ऑर्डर देते हैं कि डीएनए मेरा वायरस का पार्टिकल बनाए, ना कि हमारा इसेंशियल वाइटल एंजाइम्स या केमिकल्स बनाए. सो coronaviruses are group of viruses whose hosts are mostly apes and animal. apes birds को कहते हैं and mammals. in animals mammals. both apes and mammals are animals. So these are the viruses whose host are, means they attack or they enter, when they enter into the body of apes, birds or mammals, then only they become active or living, and we are mammals. Chemically, it is made up of protein. Glycoprotein means covering of virus, glycoprotein, and every virus has a genomic material which guides its nature, and it is chemically of nucleic acid, and this coronavirus is made up of RNA, ribonucleic acid. Okay, this coronavirus has nucleic genome in form of RNA, and so this is called as an RNA virus. Due to the presence of crown-like structure on its membrane, a crown-like structure spikes are present. You can see in the diagram, this is the chemical diagram, chemical nature of this virus. If you see the crown-like structure on the surface of membrane, so on the basis of this crown like structure, this virus is named as corona, and it is variant of SARS virus. In the chapter Why Do We Fall Ill of class 9th, we have read about SARS, MARS. These all are respiratory related diseases that were caused by viruses, and this coronavirus also belongs to this group of SARS and MARS virus, but the difference is that it is a variant form of this virus. ये सार्स एंड मार्स वायरसेस का बदला हुआ रूप है, जिसका अभी तक हमारे बॉडी में हमारा बॉडी उसको पहचान नहीं पा रहा है और हमारा बॉडी उससे लड़ नहीं पा रहा है, और अभी तक हमने उसके लिए, उस वायरस को मारने के लिए कोई वैक्सीन डेवलप नहीं किया है. ओके, दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस वायरस. व्हेन इट इज फाउंड outside of the body, it will be non-living, and as soon as it will enter into our body, it will become living. So it is being ordered, or it is being requested to you all that wear mask, go outside in a very limited way or in a very mannered way, and so all these preventions are being taken so that this virus may not enter our body. ये सभी बचाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये वायरस हमारे बॉडी में इंटर ना करे, क्योंकि जब तक ये वायरस बाहर है, ये नॉन लिविंग है, कुछ नहीं कर रहा है, और जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो ये अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है और हमें हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे मैकिनरी, केमिकल मैकिनरी, एंजाइमेटिक मैकिनरी पे असर डालता है. Now as soon as this virus entered into a living organism, it become living like this. It has movement and it hijacked the genomic constitution of a living body, living cell. ये लिविंग सेल के डीएनए या जीनोम पर अटैक करता है, अपना जो आरएनए है उसमें ऐड करता है, एंड इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ इन अ न्यूमरस अमाउंट. ये वेयर डज दिस वायरस ओरिजिनेट, मैंने पहले भी बताया कि ये वायरस बहुत ही, इसमें सबसे ख़तरनाक बात ये है कि ये वेरिएंट है और इसमें म्यूटेशन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है.
मीन्स ये चेंज हो जा रहा है बहुत जल्दी, जिसके कारण भी इसके वैक्सीन्स और इसके सिम्टम्स जल्दी से भी चेंजेज हो रहे हैं, और पहचान में एक डेफिनेट सिम्टम खोज हम लोग और एक डेफिनेट ट्रीटमेंट भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें म्यूटेशन की कैपेबिलिटी है जो वो काफ़ी ज़्यादा है। ये फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था यह वायरस इन द वुहान सिटी ऑफ चाइना वेयर सार्स वाज ऑल्सो ओरिजिनेटेड। यह जो वायरस है सार्स कोविड-19, यह वहीं से आया है जहां पर सार्स भी ओरिजिनेट किया था 2003 में। सार्स इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये वायरसेस जो होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करते हैं। आप इसमें कोरोना में भी देख रहे होंगे, इन द सीवियर कंडीशंस आवर लंग्स आर बीइंग हाईली हैम्पर्ड बाय दिस वायरस। कंजेशन हो रहा है, सेल इन्फ्लैट होके डेड कर जा रहे हैं, पूरा लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जा रहा है। in the not in the initiative condition, mind it in very severe condition. This virus is SARS because it is a variant of SARS. COVID means corona, co means corona, VI means virus, D means disease, and 19 means the year 2019 it was originated, and it was first found in the Wuhan city of China. So it was named as SARS COVID-19. Co means corona, VI means virus, D means disease, 19 is the year. So the name of this virus is SARS COVID-19. Now it is a novel strain of coronavirus. Novel means very smart, very talented. It is very smart and talented strain of coronavirus. coronavirus बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत स्ट्रेन के होते हैं, उसमें ये सबसे अच्छा चालाक वाला स्ट्रेन है। The contagious disease caused by it is called COVID-19, और जो ये डिजीज़ काउज कर रहा है उस डिजीज़ का नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज़ 19। ओके, contagious means very contaminated, means very high capability of transferring itself or communicating disease, communicable disease it is. It can be highly communicated in the person to person, and it is the most dangerous thing about दिस वायरस ऑल्सो, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र होने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसफ़र होते हैं डिजीज़, इसकी स्पीड इस वायरस की काफ़ी ज़्यादा है। सो वी आर फोकसिंग मोर अबाउट द सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग। ना दो लोग कांटेक्ट में आएंगे और ना ही यह वायरस ट्रांसफ़र हो पाएगा इफ़ एनी वन और एनी सस्पेक्टेड पर्सनालिटी इज कैरिंग दिस वायरस। इट इज़ हाईली कंटाजियस, काफ़ी संक्रमित है ये। संक्रमण बहुत ही तेज़ी मात्रा में, बहुत ही तेज़ी से फैलता है यह, एंड ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन ओनली एंड थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स। यह एयर ड्रॉपलेट्स, माउथ एयर ड्रॉपलेट्स एंड नेज़ल एयर ड्रॉपलेट्स, नेज़ल ड्रॉपलेट्स एंड माउथ ड्रॉपलेट्स, जो कि स्नीजिंग करने के दौरान, स्पीकिंग के दौरान या खांसने के दौरान जो एयर ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं उनके द्वारा यह ट्रांसफ़र होता है इन द सेम वे जो कोल्ड एंड कफ में होता है। लेकिन कोल्ड एंड कफ का वायरस काफ़ी पुराना हो चुका है, उसमें इतनी म्यूटेशन करने की क्षमता नहीं है। हम लोगों ने इसकी मेडिसिन भी ढूंढ लिए हैं, लेकिन ये जो वायरस है वो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल नया है। आवर बॉडी इज़ नाउ नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दिस वायरस। मे बी कुछ दिनों के बाद अगर बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड होंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, इट मीन्स कि हमारी बॉडी भी इसके प्रति इम्यून डेवलप कर चुकी होगी। लेकिन इट इज़ द पीरियड गोइंग ऑन इन विच आवर बॉडी हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज दिस वायरस। सो हमें वक्त लग रहा है इस वायरस को पहचानने में। इट रिमेन्स एक्टिव। जब हमने इफ़ आई एम सफरिंग फ्रॉम और आई एम कैरिंग दिस वायरस, इवन आई एम इल और नॉट, मे बी आई एम इल और नॉट, ये वायरस कैरी करने के बावजूद मैं बीमार हो भी सकती हूँ, नहीं भी हो सकती हूँ। इट डिपेंड अपॉन द माई इम्यूनिटी, ये मेरा इम्यून कितना स्ट्रांग है इस पे डिपेंड करता है। और इफ़ आई एम कैरिंग दिस वायरस और आई coughed or sneeze in open space, then this virus can remains active
for 30 minutes to 2 to 3 days depend upon the surface quality. ऐसे भी आप वेरियस मीडिया में देख रहे हैं, ये लकड़ी पे कितने दिन रह सकता है, हवा में डस्ट में कितने दिन रह सकता है, फ्लोर पे कितने दिन रह सकता है, मेटल्स पे कितने दिन रह सकता है, आर डिफरेंट. इट्स एक्टिव एंड एक्टिव फेज रिमेन वेरी एक्टिव फॉर 30 मिनट्स टू 2 to 3 days. मीन्स इसके बीच में अगर ये वायरस किसी के टच में आया एंड इट गेट चांसेस टू इंटर योर बॉडी, देन इट विल be active and it will cause the disease. So what are the symptoms? Agar if we anyhow and get prone to this disease and this virus get enters into our body, तो हमें क्या क्या होगा, क्या symptoms होंगे? हमारा जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो बढ़ेगा, हाई. It will cause sneezing, coughing. One more dangerous thing about this virus is that इसके symptoms भी different आ रहे हैं. आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा, छोटे बच्चे इस वायरस इन्फेक्शन के बाद डिसेंट्री भी उनमें स्टार्ट हो जा रही है, उनमें डायरिया का सिम्टम आ रहा है. ओल्ड पीपल में बहुत ही भयंकर रूप ले रहा है ये, और उनके वाइटल ऑर्गन्स फेल्योर कर जा रहे हैं. इट इज़ अफेक्टिंग किडनी ऑल्सो, लीवर ऑल्सो. बट दीज ऑल आर इन सीवियर कंडीशन. ये सभी सीवियर कंडीशन में हो रहा है. नॉर्मली इट इज़ नॉट फेटल लाइक दैट. If you are aware and if you are aware about your health, then you can easily control this virus. What are the symptoms? The incubation period of this disease is 3-4 days. Incubation period means the time when germs or any vector or any microorganism, disease causing microorganisms enters into our body, and the time taken by it to give the symptoms externally. जैसे कोई वायरस हमें या बैक्टीरिया इंटर किया और उसके बॉडी पे सिम्टम्स कब तक आ रहे हैं, कितना पीरियड लगता है, क्योंकि वो जाने के बाद हमारे बॉडी को हाईजैक करता है, हमारे बॉडी फिजियोलॉजी को, हमारे बॉडी के केमिस्ट्री को, और डिवाइड करता है. डिवाइड करने के बाद अपनी संख्या को बढ़ाता है, और इसमें वक्त लगता है. और ये इसी वक्त को हम लोग कहते हैं द टाइम टेकन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स टू गिव द सिम्टम्स एक्सटर्नली इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, एंड इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 3-4 days. मीन्स इन्फेक्शन या वायरस एंटर करने के बाद आप 3-4-5 दिन तक भी हेल्दी ही नज़र आएंगे. उसके बाद आप में सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं. माइल्ड फ्लोइंग नोज़, नाक बहेगी. ड्राई कफ है, सोरिंग थ्रोट, खसखसाहट वाली गला. ड्राई कफ आएगा, मीन्स नो बबलगम विद द कफ. फैटिक, थकान फील होगा आपको. फीवर होगा. और इन सभी के बाद अगर कोई आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस वायरस को मार पाए, तो इन द सीवियर कंडीशंस लंग्स कंजेशन इज़ बीइंग अकर्ड. मीन्स आपके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे. बट इन वेरी लास्ट स्टेज, if we are not aware of our health and the changes which is going in our health. Children and old age groups of people who have less self immunity is very important point. दो ग्रुप के पीपल, जो बच्चे हैं और जो ओल्ड एज हैं, इन दोनों में जो बच्चों में अभी उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, और ओल्ड एज में उनका इम्यून सिस्टम अब सीनेसेंस की ओर जा रहा होता है. मीन्स अब वो काम करना की स्पीड, इफ़िशियंसी जो है वो घट जाती है. तो ये दोनों जो एज ग्रुप है, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज, बोथ आर वेरी प्रोन टू दिस डिजीज़ बिकॉज दे हैव लेस सेल्फ इम्यूनिटी. जैसे हमारा जो स्टेज अगर यंग स्टेज है, you all people are in young stage and you are taking a healthy nutrition and healthy exercise, means your immunity is strong. तो मे बी ये वायरस आप में इंटर करें और विदाउट एनी क्रिएटिंग एनी डिस्टर्बेंस एंड सिम्टम्स आपका बॉडी इसको मार दे. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर ये वायरस इंटर कर रहा है एंड यू आर एबल टू फाइट विद दिस डिजीज, बट you become an agent to transfer this virus from you to another people who is old or a child. अगर किसी बूढ़े या बच्चे में आपके द्वारा ये वायरस चला गया, तो
that poor people will be not able to fight from this disease because their immunity system is very weak, is not so much developed, or it is not so much efficient in the old age groups. Okay, and in that condition it can cause it can cause vital organ disorder, and this disease is very dangerous for the person also who is suffering from any chronic disease or vital organ disorder. जैसे कि किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को बीपी प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सभी पीपल के लिए भी ये डिजीज़ जो है वो काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है आजकल. इट मीन्स कि एनी हाउ इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, योर इम्यून and your nutrition, everything, and if you are a healthy person, then you don't need to be very much worried about this disease. But take care कि आपको you have not to become a vector. आपको एक वेक्टर भी नहीं बनना है कि आपके द्वारा ये डिजीज़ या ये वायरस किसी और को ट्रांसफ़र हो, क्योंकि आप तो डिजीज्ड नहीं होंगे, लेकिन आपके द्वारा अगर ये किसी और को ट्रांसफ़र हुआ तो मे बी उसके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वह द पुअर पर्सन कैन fight from this disease or not. Especially children and old age people are not able to fight from this disease. So why to worry? We have to worry about this disease even it is not so much fatal, because till today no vaccines are available. कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. आपका जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, हमें टीका लगता है, बहुत सारे डिजीज, डिप्थेरिया, न्यूमेनिया, ये सभी का टीका अवेलेबल है, सो हमें डरने की बात नहीं होती. लेकिन अभी इस वायरस का कोई डिजीज़, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, अभी ये प्रूफ हो रहा है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो so we have to worry only about that because there is no vaccines or no medicines are available in the market. और अगर लार्ज अमाउंट में पीपल बीमार पड़े तो हमारे डॉक्टर्स के पास भी क्या रहेगा इसके इलाज के लिए. एंड वन थिंग मोर दैट द डिजीज इज दिस डिजीज COVID-19 is being treated on symptomatic treatment. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन्स जो आपको सिम्टम्स आएंगे तो पहले से जो दवा अवेलेबल है वो दवा आपको दी जाएगी. लाइक फीवर आएगा तो एंटीपायरेटिक कुछ दिया जाएगा, पैरासीटामोल. लाइक कफ होगा तो एंटी या कफ रिलेटेड दवा दी जाएगी. तो केवल सिम्टम्स पे इसके इलाज मौजूद हैं उस सिम्टम्स से लड़ने के लिए. लेकिन इस वायरस को मारने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है. तो ठीक है, अगर हम सिम्टम्स को मार भी दे रहे हैं, सिम्टम्स को हटा भी दे रहे हैं, लेकिन वो वायरस तो नहीं जी पा रहा है हमारे बॉडी में. सो इट इज़ वेरी डेंजरस दैट नो वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. सो और यही कारण है कि हम लोग अभी तक इतने चिंतित और अपने घरों में दुबके हुए हैं. As soon as the vaccines are available, the medicines will be available, it will become just a simple viral disease. Now then if we suffer anyhow bad luck, we get this virus into our body, then what to do? हम अब क्या करेंगे? These are the steps. Keep social and physical distancing at least 2 meter or 6 feet distance. आप जब भी और इस वायरस को से बचने के लिए हम में ना आए, इससे प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हो जाने के बाद क्या करेंगे ये भी मैं बताऊंगी. लेकिन इससे बचने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये क्यों हम कैरी करें, ये वायरस को क्यों चांस दें कि हम में इंटर करें. इसके लिए सबसे पहला है सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, नॉट द इमोशनल डिस्टेंसिंग. वी हैव टू कीप आवर हार्ट्स क्लोज बट वी हैव टू कीप आवर बॉडी एट अ डिस्टेंस प्लेस. एटलीस्ट 2 मीटर और 6 फीट डिस्टेंस हमें मेंटेन करके रखना है जब भी हम किसी आउटसाइडर या किसी पीपल से बात कर रहे हैं. तो नेक्स्ट इज वॉश आवर हैंड्स. अभी तक आप एकदम अपने डेली रूटीन एंड हाइजीन में शामिल कर लिए होंगे टू वॉश योर हैंड्स. अब तो आदत पड़ गई होगी. एंड टू यूज़ सैनिटाइज़र. सैनिटाइज़र को यूज़ करना है
सैनिटाइज़र को यूज़ करने वक्त हाथ नहीं धोते हैं, वो अपने हाथों में उनको लगा लिया जाता है एंड लेट इट ड्राई. बट you can also wash your hands with soap and any Lifebuoy or Dettol and any soap which we have in your home at regular interval or time period. जैसे कि अगर आप कोई कंटामिनेटेड प्लेस या कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को टच भी करते हैं तो अगर आपने वॉश किया तो ये वायरस आपके हाथ से हट जाएगा, निकल जाएगा. सो एंड यूज सैनिटाइजर ऑफ कोर्स. Second, the third is the most important this, and it will prevent all the healthy persons also to use the mask. मास्क आपको यूज़ करना है टू कवर योर फेस एंड ओपनिंग्स ऑफ नेजल एंड ओरल कैविटी. ओपनिंग ऑफ नेजल एंड ओरल कैविटी. And if you are a healthy person, you can easily use a simple cotton cloth. आप एक सूती का cotton is very comfortable for the skin. So cotton is being issued or being told by the people that use cotton cloths to mask your mouth, and you don't need to use any medical, surgical or N95 like mask, and let these masks free for the people who are working or really prone to these type of people. जैसे हमारे पुलिस मैन हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में जितने नर्सेज एंड स्टाफ्स हैं, उनको इन सभी मास्क का यूज करने की ज़रूरत है. हम हेल्दी पीपल सिंपली अपना फेस कॉटन क्लोथ से कवर कर सकते हैं टू प्रिवेंट these viruses to enter into our body. और ऐसे भी जब भी बात करें तो 6 फीट या 2 मीटर की दूरी पर बात करें. दिस वायरस विल बी नॉट एबल टू इंटर इन योर बॉडी. द फोर्थ थिंग दैट वी मस्ट nowadays, it's the best time to use your or to utilize your time or to give your time with your family. आप अपने परिवार को समय देने का सबसे अच्छा वक्त है. अगर काम, इफ़ यू आर ऑफिस बॉय, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो भी create a condition in your room or in your house that we can do the official work at home also, like this. Like me also, I am making this video at home, not going to the school. I am teaching you at home, not going to the school. So we have to bring a certain change in our work or in our houses or in our home also, to make a surrounding so that we can work at home. And we must prevent unnecessary going outside for any reason. जैसे बच्चे बेमतलब का रोड पे घूमा करते थे या पार्क में घूमा करते हैं या दोस्तों के साथ एक वॉक लेते थे, ये सभी हैबिट्स को अभी आप लोग अवेल कीजिए. आप अभी इसको आदत से निकालिए. अननेसेसरी घूमना बंद कीजिए. अपने आप में कुछ ऐसी आदतें डेवलप कीजिए. इंडोर गेम्स खेलिए अपने भाइयों बहनों के साथ, माता पिता के साथ. कुछ मेडिकेशन कीजिए, कुछ योगा कीजिए, लेकिन स्टे एट होम एंड वर्क एट होम. एंड योर वर्क इज़ स्टडी, माई वर्क इज़ to teach you, and I think both the work is going on very nicely at home also. तो यू मस्ट, मैंने पहले भी बताया था कि इस वायरस को लड़ने का कोई दूसरा तरीका अभी नहीं आया है मेरे पास. ओनली द वे इज़ माई ओन इम्यूनिटी. पहला और आखिरी अभी इलाज है हमारा खुद का इम्यूनिटी, और हमारे खुद की बॉडी इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आप अच्छे हैबिट्स को डेवलप करिए. हेल्दी न्यूट्रिटिव फूड को लीजिए. डू योगा, डू मेडिटेशन. एक मॉर्निंग एक्सरसाइज कीजिए, रात में मेडिटेशन कीजिए. थक जाने के बाद कुछ आप ध्यान कीजिए. कुछ अच्छे लोगों को सुनिए और जिनकी थॉट्स आपको अच्छी लगती है, पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में लाइए. वो सारे चीज़ों को एक लिस्ट बनाइए. क्या मुझे करने हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आर योर इंटरेस्ट. आप अपने बारे में कुछ लिखिए. एंड मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए. एक्सरसाइज ऑन योर मेंटल हेल्थ. सर्च वेयर यू आर फाइंडिंग योर हैप्पीनेस एंड डू डैट एट योर होम. अपने घर पे ही उस खुशी को तलाशिए और उस पर वर्क कीजिए और मेंटली ठीक रहिए. व्हेन आई विल डिस्कस व्हाई डू वी फॉल इल फॉर क्लास 9th और इट इज़ अ जनरल टॉपिक ऑल्सो, तब मैं बताऊंगी कि हेल्थ क्या है.
हेल्थ केवल डिजीज़ फ्री कंडीशन बॉडी ही नहीं है, हेल्थ एक अच्छा मेंटल सोशल कंडीशन भी है। तो आप मेंटली भी स्ट्रांग रहिए, बहुत ज़्यादा बोर नहीं होना है, हर वक्त सोचना नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे ये जीवन सबसे बड़ी है। अगर हम हेल्दी जीवित रह पाएँ, स्ट्रांग निकल पाएँ तो बहुत कुछ करेंगे। ओके, एंड ओनली यू आर नॉट बीइंग सफर्ड इन दिस एरा। आप इस वक्त आप ही केवल सफ़र नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑल कंट्रीज आर एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड are suffering from this pandemic disease. So no need to worry, cheer your life, enjoy this time of homely time which where you are spending at home. अगर आप में सिम्टम्स डेवलप हो गए तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वारंटाइन योर सेल्फ। ये वर्ड बहुत ही आ गया है अब यूज़ में आफ्टर दिस कोरोना वायरस। क्वारंटाइन मीन्स टू आइसोलेट योर सेल्फ, टू सेपरेट योर सेल्फ सो दैट यू विल बी नॉट एबल टू ट्रांसफ़र योर वायरस टू अदर पीपल। आपको दुखी होकर सेपरेट नहीं होना है, उदास होकर आइसोलेट नहीं करना है, लेकिन एक सोशल जिम्मेदारी लेकर आई एम अ सोशल पर्सन, आई एम अ सोशल स्टूडेंट, आई एम अ सोशल पर्सन सो दैट दिस वायरस मे नॉट बी फॉरवर्डेड और मे नॉट बी कैरीड आउट टू योर फैमिली मेम्बर्स, जिसमें आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, ताकि उनमें ये ट्रांसफ़र ना हो। और आप एक क्वारंटाइन मतलब एक अपना रूम बना लीजिए, उसी में अपने सारे काम करिए और रेगुलर हाइजीनिक टास्क फॉलो करिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करिए, काढ़ा पीजिए, अच्छे हेल्दी डाइट्स लीजिए, कुछ एंटीबायोटिक्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो लीजिए। और जब आप हेल्दी डाइट लेंगे और एंटीपायरेटिक टैबलेट्स लेंगे तो मे बी दिस डिजीज़ इफ़ यू आर स्ट्रांग इंटरनली बाय योर इम्यून सिस्टम, ये आराम से ये डिजीज़ ख़त्म हो सकता है आप में। बस लेकिन क्वारंटाइन होना ज़रूरी है ताकि आप माध्यम ना बने कि ये डिजीज़ किसी और में ट्रांसफ़र हो जाए और वो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक हो जाए। बस दिस इज़ द फियर पॉइंट ऑफ दिस डिजीज़। बस यही एक फियर पॉइंट है कि इसके लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है और ये ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो रहा है। तो ट्रांसफ़र अगर आ गया तो आप ट्रांसफ़र होने से बचाइए इसको, आप क्वारंटाइन हो जाइए, टेक योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्ट योर डॉक्टर फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, बिकॉज अभी हॉस्पिटल्स में बहुत रश है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे सिम्टम्स हुए और आप हॉस्पिटल दौड़ जाइए। प्लीज़ अभी हॉस्पिटल्स भी खाली नहीं हैं। हो सकता है हॉस्पिटल्स के बेड उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सो उनके लिए सेक्रीफाइस करिए और डोनेट कीजिए बेड, हॉस्पिटल बेड डोनेट कीजिए। इफ़ यू आर नॉट so much in a severe condition or in a fatal condition, आप डरिए नहीं, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, बच्चे हैं, आप में अच्छे इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो आप आराम से घर में भी हेल्दी डाइट एंड डॉक्टर के कंसल्ट करने के अनुसार जो वो बताते हैं वो फॉलो करने के बाद आप ठीक हो सकते हैं। एंड इफ़ नॉट देन विजिट द हॉस्पिटल and the hospital number and all these numbers are provided by our ministry and Ministry of Family Welfare Department also. Banners are being given, posters are being provided everywhere. And the best preventive step is to please stay at home. आपके घर से ज़्यादा सुरक्षित कुछ भी नहीं है। हम क्यों अपने घर में ना रहकर इस वायरस को लें और एक वैसे जगह जाके हॉस्पिटलाइज्ड हों जहाँ पे इस वायरस को फैलने की और संभावना है। घर पे रहें, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड दिस home is the only protective and best protective shield for this coronavirus. See here, the viruses are jumping but it is not entering at your home. जब तक कि कोई बाहरी व्यक्ति उस वायरस को आपके घर में नहीं लाता है, ये वायरस नहीं आएगा। ये वायरस इतना भी बेशर्म नहीं है कि आपके ना बुलाने पे आए, लेकिन इतना भी और लेकिन खुददार बहुत ज़्यादा है। आप एक बार इशारा देंगे ये दौरा चला आएगा। सो स्टे एट होम एंड डोंट इनवाइट दिस वायरस, और ये वायरस बिन बुलाए आपके घर में नहीं आता। ओके, these are the posters and banners which are provided by the Ministry of Health, Government of India, and 24/7 hours
facilities are available here, and what you have to do and what you don't have to do here, everything is given. Like if you sneeze, you don't cover your mouth by your palm. आप अपने हथेलियों से मुंह को कवर ना करें. cover your mouth by your elbow, क्योंकि हाथ हमेशा फेस पर जाता है, एल्बो कम जाता है. तो हाथ से कवर ना करें, हैंडशेक ना करें, हाथों से किसी चीज़ को जल्दी ना छुएं, और हमेशा अपने हाथ को धोएं, डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, हेल्दी डाइट लें और बाहर घूमने से बचें. तो ये सब आप हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ये पोस्टर्स एंड बैनर्स हम लोगों के लिए जारी कर रही है ताकि हम लोग जागरूक हों. नाउ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड इट आवर नाउ मोरल एथिक्स. हम लोग एक पढ़े लिखे और जागरूक और एक सोशलाइज्ड और एक सिविलाइज्ड इंसान है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमारे जो ये मेडिकल फ्रंटलाइनर्स हैं, हमारे जो ये सिविल कंट्रोलर्स हैं, उनको रेस्पेक्ट करें, उनको थैंक्स बोलें. These all people are just the second form of God, or maybe the first form of God in our societies nowadays. So pay a humble thanks to these personalities, medical frontliners and all those who are fighting for us in the and exposing themselves to these viruses and taking their lives to a risk point and preventing our life. So stay home, be positive with good mental and physical health and to fight against this corona. अपने इम्यूनिटी को बढ़ाइए मेंटली एंड फिजिकली, क्योंकि अगर आप मेंटली हेल्दी भी नहीं रहेंगे तो एक अच्छा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑल दीज आर अंडर आवर हार्मोनल कंट्रोल. अगर हम उदास रहेंगे, डर जाएंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी उस एक्सपोजिंग वे में काम नहीं कर पाएगा जैसे आप एक फाइटर के तौर पे सोचते हैं, और तो आप में ऐसे भी जोश आ जाता है. तो बी हेल्दी विथ योर गुड मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन टू फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना. नथिंग टू वरी. हर वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजरता है, अच्छे वक्त भी गुजरते हैं, तो ये बुरा वक्त तो और जल्दी गुजरेगा, और गुजरेगा ही. हम लोग सब एक साथ मिलकर फाइट करेंगे. अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए. हम हमेशा केंद्रीय विद्यालय, हमारी पूरी ग्रुप ऑफ टीचर्स, ऑल आर with you. If you need any help, any kind of suggestions, you can contact us. So thank you. Think positive, be healthy.